So, good afternoon to all the students. Now, as we discussed in morning tutorial session, two problems we discussed. First is shear force and bending moment diagram for the cantilever beam, which is subjected to a point load. And second problem, shear force and bending moment diagram for a cantilever beam subjected to uniformly distributed load. Okay, the basic difference in between these two problems is that the shape of the shear force and bending moment diagram. Okay, for the point load, the shape is rectangular, and for the uniformly UDL, uniformly distributed load, it is triangular. Okay, and similarly, for the point load, the bending moment diagram is triangular, and for the UDL, it is become parabolic. So you have to note that the mentioned things, the important notes for the shear force and bending moment diagram, first and main is sign conversion. Sign conversion is most important factor, because if you consider wrong sign conversion, then it means it is going to some problematic things. Means if you consider wrong sign conversion, then there is a possibility that your problem is wrong. Means your solution is wrong. Okay. So before starting the today problem, and means next problem, we have to I ask to all of you, there is any problem, there is any problem to previous or any doubt in previous from the previous two problem. Okay. After that, I will start the today means next problem. Okay. So if there is any problem, then or doubt, then you can ask your doubt first. Then I will take the another problem to solve. Okay.
Okay, so students, I think there is no problem because you don't have any question regarding previous problems. So I just start the next problem. Cantilever being subjected to the point load as well as UDL load. Okay, so like this, I'm going to start. Okay, so here we can observe that the cantilever beam is subjected to UDL load, which is 10 kilonewton per meter. 10 kilonewton per meter, and it is not थ्रो ऑन मीन्स ये जो लोड है ये आपका कंप्लीट लेंथ पे नहीं है, कंप्लीट लेंथ पे नहीं है। फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, लेंथ गिवन है, ठीक है ना, तो ये इसको हम बोल लेते हैं ये सी पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, और जीरो 0.5 मीटर and this is 2.5 meter. Okay, 2.5 मीटर। तो ये प्रॉब्लम है सेम। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना, जो इसके पहले प्रॉब्लम देखी थी उसमें क्या था कि यूनिफॉर्मली यूडीएल जो था वो पूरे लेंथ में था, कंप्लीट लेंथ पे। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है, जो यूडीएल है वो पर्टिकुलर सेक्शन में है ना, कंप्लीट लेंथ पे नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमको ये देखना है। तो ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन निकालनी है। तो रिएक्शन बहुत इजी है कैंटिलीवर बीम के लिए कि जितना भी लोड लग रहा है, जितना भी लोड लग रहा है ना, वो क्या कहते हैं कि हम कंसीडर कर लेंगे ये आपका 15 है, सॉरी 10 नहीं 15 है, ठीक है। जितना भी लोड लग रहा है ना, उतना। तो टोटल लोड कितना लग रहा है? 2.5 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए। 15 इंटू
2.5, that is 37.5 किलो न्यूटन। ओके, तो ये क्या रिएक्शन क्या होगा, सेम रिएक्शन यहां पे लग जाएगी, दैट इज आर ए 37.5 किलो न्यूटन। ठीक है, 37.5 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन फाइंड आउट हो गई, दिस इज द रिएक्शन, बट द प्रॉब्लम इज हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट द शियर फोर्स। अभी हमको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो फोर्स एट बी, तो यहाँ पे देखिए बी कोई भी लेंथ कवर नहीं कर रहा है, देयर इज नो लेंथ कवर्ड बाय बी पॉइंट, तो यहाँ पे ये फोर्स 0 हो जाएगा। देन एफ सी, क्योंकि सी भी एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सी भी एक पॉइंट है, तो सी पे कितना होगा, सी अभी देखिए 2.5 लेंथ कंप्लीट कर रहा है, तो हो जाएगा 15 इंटू 2.5, दैट इज 37.5 किलो न्यूटन। ओके, चलिए ठीक है। और एफ ए, तो ये कितना है, ये ऑलरेडी गिवन है 37.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अब बारी किसकी, कैलकुलेट दी बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो अभी देखिए बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे 0 रहता है कैंटिलीवर बीम में, तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, सोचने का ही नहीं। ओके, फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो अभी ये देखिए जब बेंडिंग मोमेंट निकालने का रहता है तो हम क्या कहते हैं, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 37.5, और वो कहाँ पे अप्लाई होगा, वो मिड पॉइंट पे अप्लाई होता है, तो कंसीडर करिए। और ये यू घुमाएगा हॉगिंग में, तो हो जाएगा 37.5 इंटू 1.25, 2.5 का हाफ। ओके, so this is in minus because this is create the hogging। तो कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा ये कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। 37.5 इंटू 1.25, कैलकुलेट करिए, फिर आंसर आगे मैं लिखूं, जल्दी करिए, आंसर बताइए। Anyone calculate this?
37.5 into 1.25. What is the answer? What is the answer? Calculate fast. चलिए इतना सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों से नहीं हो रहा है। 37.5 into 1.25. What is the answer? How much? कितना हुआ? Sir, 46.875. 46.375. 875. ओके, किलो न्यूटन मीटर। Sir, ओके, 875. और 675। ओके, माइनस में रहेगा ये, क्योंकि फॉगिंग क्रिएट करेगा, ये शेप क्रिएट कर रहा है, इसलिए माइनस में रहेगा। ठीक है, और ए में कितना हो जाएगा अभी देखिए, ये भी माइनस में रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 37.5 इंटू, इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगी बस, और बाकी सेम ही रहेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1.75। ठीक है ना, 1.25 की जगह अब डिस्टेंस केवल इंक्रीज होगी, फोर्स इतना ही रहेगा। दैट इज, अभी बताइए आंसर। 37.5 इंटू 1.75। सर 65.625। कितना बेटा? 65.625। 65.625। ओके, ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, ये भी माइनस में ही रहेगा। ओके, तो आपका बी पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे 46.675, और यहां पे कितना हो गया, ए पॉइंट पे 65.625। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अभी नेक्स्ट थिंग है कि हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने का है। तो मेन क्या है कि ये चीजें हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमको एफ डी 0, एफ सी 37.5 और एफ ए 37.5। ओके, सेम थिंग एम बी
0 MC इक्वल टू माइनस 46.675 MA 60.625। तो वैल्यू लिख लिया मैंने। अब ये देख लें कि ये डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि ये पिछली प्रॉब्लम से डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है, इसमें हमने देखा कि जो यूडीएल है वो होल लेंथ के लिए अप्लाई नहीं है, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अप्लाई है। तो बेस लाइन ड्रॉ करते पहले, दिस इज दी बेस लाइन। ओके, तो बेस लाइन ये है, किसके लिए है? शियर फोर्स डायग्राम के लिए है। तो अभी ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है? 37 है। ठीक है, तो प्रॉपर स्केल में हम शो करेंगे। थर्टी 37.5 और ये यहाँ पे सी है, देखिए इसका भी प्रोजेक्शन लीजिए। ओके, तो सी पे कितना है? सी पे भी सेम है। तो यहां से यहां तक हम एक ए 37.5, तो यहां से यहां तक क्या है कि वैल्यू सेम है। देखिए यहां से यहां तक वैल्यू सेम है, तो ये एक ऐसा है। फिर बी पॉइंट पे 0 हो जाता है, तो यहां से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी 37.5 हो गया, और ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया हमारा डायग्राम। क्योंकि डायग्राम प्रॉब्लम में हमारा जो यूडीएल था वो पर्टिकुलर होल लेंथ पे नहीं था, सेगमेंट पे था। तो जहां से जहां शुरू हो रहा है वहां पे एक ट्रेंगुलर शेप, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंगुलर शेप गेन हो गया, और जहां पे क्या कहते हैं कि इधर पॉइंट लोड की तरीके कंसीडर हुआ। तो ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, दो सेक्शन मिले यहाँ पे, दो डिफरेंट शेप कंबाइन करके मिला। इसलिए क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया, कि प्रॉब्लम इस ऐसे चेंज हुई थी, यहाँ पे जो यूडीएल है वो होल लेंथ पे नहीं है, पर्टिकुलर सेक्शन पे है, अ सेगमेंट ऑफ लेंथ पे है। उस वजह से हमारा डायग्राम चेंज हो गया। अभी बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट पे देखिए कितना है? 60। तो यहाँ पे आया 60 और ये 46। तो ये तो ऐसे मिलेगा लीनियर। ये कितना है? 60.625, और ये कितना है? 46.675। ओके, और उसके बाद ये 0 हो गया। लेकिन ये 0 लीनियरली नहीं मिलेगा, पैराबोलिक शेप में मिलेगा ऐसे। पैराबोलिक शेप में मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख देते हैं 46.675, क्योंकि ये क्या है? यूडीएल है, तो यूडीएल पैराबोलिक हो जाएगा। और रीजन निगेटिव रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है डायग्राम।
इसलिए ये निगेटिव रहेगा। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ड्रॉ हो गए। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? एनी कंफ्यूजन? कोई डाउट है? देखिए सिंपल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसा जैसा लोड, जैसा जैसा शियर फोर्स हमको कैलकुलेट होते आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसमें। स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो देन आप अपना क्वेश्चन पूछिए, या फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। यू गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी देखिए कि हमने 3 तरीके की प्रॉब्लम देखी। फर्स्ट प्रॉब्लम पॉइंट लोड का था, जो कि फ्री एंड पे अप्लाई था। सेकेंड प्रॉब्लम यूडीएल लोड अप्लाई था, जो कि पूरी कंप्लीट लेंथ पे यूडीएल लोड अप्लाई था। देन ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या है कि यूडीए अप्लाई है, लेकिन वो कंप्लीट लेंथ पे ना होकर के पर्टिकुलर सेगमेंट पे है। क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट पे है। तो ये थर्ड टाइप का केस हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी ये कैसी प्रॉब्लम है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें पॉइंट लोड और यूडीएल कंबाइन में अप्लाई होगा। पॉइंट लोड और यूडीएल कंबाइन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपका क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। 2 मीटर 2 मीटर, ओके। पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम है, जहां पे टोटल लेंथ 4 मीटर है। ठीक है, फ्री एंड से 2 मीटर तक, फ्री एंड से 2 मीटर तक आपका यूडीएल अप्लाई है, और फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड भी अप्लाई है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले रिएक्शन आर ए, तो आर ए जितना भी फोर्स लगा हुआ है वो आपका आर ए हो जाएगा। देखिए 2 × 2
ये तो यूडीएल हो गया 2 × 2 प्लस पॉइंट लोड 4, तो ये हो गया आपका 4 + 4 = 8 किलो न्यूटन। दिस इज योर रिएक्शन फोर्स, दिस इज योर रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स इज कैलकुलेटेड। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 4 किलो न्यूटन। नाउ going to calculate shear force calculation। तो अब एफ बी देखिए, देखिए एफ बी यहाँ पे 0 नहीं होगा, there is FB is not 0 because at the B point a point load is there and the value of point load is 4 kilo Newton। That's it। FC, तो अभी FC पे क्या होगा, तो ये 4 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो तो ऑलरेडी है ही, प्लस 2 × 2 4 किलो न्यूटन यूडीएल लोड भी अप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम 8। ओके, R8 पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा आपका एफ ए दैट इज 8 किलो न्यूटन। ठीक है, शियर फोर्स कैलकुलेट हो गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट देखिए, फ्री एंड पे 0, नो नीड टू कैलकुलेट। सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे देखिए, एक तो ये बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा 4 × माइनस में 4 × 2, ठीक है, ये तो पॉइंट लोड की वजह से हो गया। फिर यूडीएल की वजह से क्या होगा, 2 × 2 × 1, मिड पॉइंट पे आ जाता है यूडीएल, तो यहां से मिड पॉइंट का देखिए डिस्टेंस देखेंगे 1 मीटर, तो ये कंसीडर हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एम ए पॉइंट पे अभी देखेंगे, तो 4 × 4 पहला पॉइंट लोड के लिए यूडी माइनस में रहेगा, 4 × 4 माइनस, आप यूडीएल के लिए ले लेते हैं, तो यूडीएल का जो 4 किलो न्यूटन का फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो वो हो जाएगा 2 × 2 × 3, तो 1 मीटर + 2 मीटर दैट इज 3 मीटर। तो कैलकुलेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 8 and 4 12 -12, 4 × 4 that is -16 plus sorry -12, so this is become 28 in minus। okay, all calculation is done, then we have to draw the shear force and bending moment diagram। okay, 4 8 8, जस्ट वैल्यू राइट अप करने का है, FB4 FC8 FA
8. Okay. Then 12 and 28. MB 0, MC minus 12, MA minus 28. ठीक है, ये कैलकुलेशन होने के बाद देन देयर इज नो प्रॉब्लम टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम. जस्ट ड्रॉ द प्रोजेक्शन. Baseline for the शियर फोर्स डायग्राम. तो यहां पे देखिए बी पॉइंट पे 4 है, तो जस्ट 4. सी पॉइंट पे 8 है, एट. ए पॉइंट पे 8 है, तो मैच कर दीजिए. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अगेन शेप इज चेंज, क्योंकि जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी टेंडेंसी चेंज हो रही है. पॉजिटिव पॉजिटिव 2 सेक्शन मिले, ए सी सी. ठीक है, अभी यहां पे देखिए ए पॉइंट पे 28 है निगेटिव डायरेक्शन में, फिर 12 है सी पॉइंट पे निगेटिव डायरेक्शन में. ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 है. तो यहां से यहां तक तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लीनियर ना हो करके कैसे रहेगा, हाइपरबोलिक रहेगा. ये देखिए. ओके, और ये लाइन लीनियर रहेगी. ओके, so this is your force and bending moment diagram for given problem. ओके, नहीं इधर नहीं, आगे वाले में. So student, this is for the today lecture. So you can, if you have any doubt, then you can ask your question. Otherwise, you can leave the classroom. Thank you. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लासरूम लीव कर सकते हैं अगर डाउट नहीं है तो. ओके, तो अभी आप क्लासरूम लीव कर सकते हैं अगर आपको डाउट नहीं है. अगर डाउट है तो देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. जिसको भी डाउट है अपना क्वेश्चन पूछिए. अगर डाउट नहीं है तो देन यू कैन लीव द क्लासरूम, देयर इज नो प्रॉब्लम.